ویڈیو بنانا پیچھے کیسا کرتے ہیں یہ کیسا ہوا؟ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مراج کالج کے ای کلاس روم میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج سر مائک آپ کے لیے ایک خصوصی لیکچر رکھا گیا ہے۔ یہ لیکچر آپ کے لیے اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ یہ لیکچر دینے والے ہمارے کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ہونہار طالب علم ہیں، محمد عبدالحفیظ۔ اور آپ کو پہلی چیز یہ سیکھنا ہے کہ کالج کے طلباء بھی آدھے گھنٹے تک یا 1 گھنٹے تک کسی موضوع پر بات کر سکتے ہیں۔ تو اس لیکچر کا عنوان ہے امتحان کی تیاری کیسے کریں۔ تو آپ لوگ نوٹ بک کھلے رکھیں، اس میں اہم پوائنٹس ہوتے ہیں۔ یہ اہم پوائنٹس کو آپ نوٹ کریں، جو بات سنے تھے وہ پوائنٹ اگر آپ پڑھ لیے کاپی میں تو آپ کو یاد ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ نہیں سمجھنا کہ ہمارے کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں کیا بولیں گے، لیکن اب فیس بک پہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور ہمارے دوست الحمدللہ امریکہ، لندن، کینیڈا، سعودی عرب کمنٹس بھی آنا شروع ہوتے ہیں اس پہ۔ تو میں حفیظ کو اسٹیج پر بلا رہا ہوں، امید کرتا ہوں کہ وہ بہت سی مثالوں کے ذریعے سے امتحان کی تیاری کیسے کریں یہ لیکچر دیں گے۔ اور آپ لوگ کچھ سوالات ہیں تو ذہن میں رکھیے، لیکچر کے بعد سوالات ہوں گے۔ یہ پاور پوائنٹ کے ذریعے سے آپ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ محمد حفیظ BA صالح، سوم گیلاد گورنمنٹ کالج، اردو میڈیم نظام۔ فل کا اسکرین ہو اور سنے جی اور آتا نا سلائڈ کرو، اس سے پہلے کرو اس کے اوپر ہوم ہاں ہوگی جی سر۔ اسکرین اس کے اوپر میں تو ادھر دیکھ لوں، ادھر کرا سلائڈ شو سائڈ کا السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ جناب صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ہاؤ ٹو پریپیئر فار ایگزامس، امتحان کی تیاری کیسے کریں۔ چونکہ ہمارا جو فرسٹ سیم ہے آپ لوگوں کا اور جو فائنل ایئر میں ان کا 5th سیم ہے، اس مناسبت سے یہ لیکچر رکھا گیا تاکہ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو رہنمایاں خطوط ملے اور کچھ اچھی پلاننگ ایگزام کے تعلق سے جو ہے ہم کر سکیں اور اس پلاننگ پہ عمل کر کے اچھے سے اچھے مارکس جو ہے ہم لا سکیں۔ اس لیے جو ہے اس لیکچر کو منعقد کیا گیا۔ نیکسٹ، اور یہ جو PPTs یہاں پہ بنائے گئے، ایک طلباء کی تنظیم ہے اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن، اس تنظیم کے افراد نے جو ہے اس PPTs کو جو ہے بنایا ہے اور ہم اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو آئیے ہمارا لیکچر ہے ہاؤ ٹو پریپیئر فار ایگزامس، کہ ہم امتحان کی تیاری کیسے کریں۔ اس سے پہلے کہ عنوان کے تحت میں آپ لوگوں کو بولوں، کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے اگر ہم کسی چیز کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، کسی چیز کی پلاننگ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمارے پاس 2 چیزیں جو ہے ضروری ہوتی ہیں، ایک تو مقصد اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کے لیے کتنی ہم جستجو رکھتے ہیں، ہمارے پاس کتنا جذبہ ہے۔ تو ماہرین کہتے ہیں کہ جو نارمل کاہل سست جس کو ہم بولتے ہیں، اب مجھے جو ہے پڑھنا ہے اکنامکس مگر میں سستی کروں، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں سست ہوں، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ میرے پاس مقصد واضح نہیں ہے۔ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں 1 یونٹ کمپلیٹ کروں گا، مگر میں پڑھ رہا ہوں نہیں تو میں کاہل نہیں ہوں، بلکہ میرے پاس مقصد واضح نہیں ہے۔ تو ہم سب سے مین چیز ہمارا مقصد بنا لیں کہ مجھے فرسٹ سیم میں ٹاپ کرنے والی ہوں، فرسٹ سیم میں ٹاپ کرنے والا ہوں، سب سے زیادہ مارکس مجھے آئیں گے۔ یہ اس بات کا جو ہے ہم سب سے پہلے تیار کر لیں۔ 1935 میں 1935 میں آسٹریلیا میں ایک واقعہ ہوا کہ وہاں پر
वहाँ के जो माहिरीन थे वो लोग ये सोचे कि फसल को हम बढ़ाएंगे, तो मुख्तलिफ जो है वो तहकीकात करें और ये जो है इस चीज़ को सामने लाए कि नागफनी का जो दरख्त होता है, एक सहराई पौधा है, रेगिस्तान में रहता, उस नागफनी के दरख्त से ऑस्ट्रेलिया की फसल अच्छी होती है। तो इस चीज़ को जो है वहाँ के लोग अपनाए और नागफनी के दरख्तों को खेतों में लगाए ताकि फसल अच्छी से अच्छी हो। मगर हुआ यूँ कि नागफनी के दरख्त को ऑस्ट्रेलिया की आबोहवा इतनी ज़्यादा भा गई कि होते होते ऐसा हुआ कि फसल पूरी जड़ से बर्बाद हो गई, पूरे के पूरे नागफनी के दरख्त उग गए। तो ये एक संगीन मसला 1935 में ऑस्ट्रेलिया में जो है वाक़ा हो गया था कि पूरा का पूरा जो है नागफनी का दरख्त है। तो माहिरीन जो है खोज को निकले, तहक़ीक़ात को निकले, तो अफ्रीका के घने जंगलों में, अफ्रीका के घने तारीक वीरान जंगलों में उन्हें कीड़ा मिला। उस कीड़े की ग़िज़ा नागफनी का दरख्त थी। उस कीड़े को लाया गया ऑस्ट्रेलिया में, जो उसको परवान चढ़ाया गया, उसको जो है बढ़ाया गया, फिर उस कीड़े को नागफनी के दरख्तों पर छोड़ा गया। इस तरीके से वो कीड़े पूरे के पूरे नागफनी के दरख्त को खा लिए, फिर एक स्प्रे मार के उस कीड़े का भी जो है खात्मा कर दिया गया। तो ये जो कहानी मैं आप लोगों के सामने रखा हूँ 1935 की, इसका मकसद ये है कि अफ्रीका के वीरान घने तारीक जंगलों में पाया जाने वाला इतना सा कीड़ा भी अल्लाह ताला बग़ैर मकसद के पैदा नहीं किया। तो फिर तो जो है हम अशरफुल मखलूक़ात है, हमारा मकसद कोई छोटा मकसद नहीं। तो ये कुछ तमीज़ी तौर पे मोटिवेशन के लिए मैंने आपके सामने बात रखी है। आइए हम लेक्चर की तरफ के इम्तिहान की तैयारी हम कैसे करें। अजीज तालिबात, अल्लाह ताला की जो है कुछ नेमतें हैं जिसका एहसास अक्सर हम में से लोगों को नहीं रहता, मगर वो अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत है। उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमारे पास दिमाग है, माइंड है। दिमाग से मुराद क्या है कि हम पढ़ने के काबिल है, हम उन स्टूडेंट्स से या फिर उन लोगों से अफजल है जो मेंटली रिटायर्ड हैं, जिनको अल्लाह ताला ने दिमाग जैसी नेमत से नहीं नवाजा। हम देखते हैं ऑटो में कॉलेज जाते वक्त कई पागल रोड पे जाते हैं, कई जो है बुद्धू रहते हैं, मगर अल्लाह ताला देखिए ये कोई आम नेमत नहीं है। दिमाग इतनी बड़ी नेमत है, इसका अंदाज़ा सिर्फ वही शख्स कर सकता है जिसके पास नहीं है। आप देखिए जिसके पास दिमाग है उन्हें तालीम हासिल कर सकता, उन्हें अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता, उसका माशरे में अच्छा मुकाम होता, फिर वो अपने दिमाग से तालीम हासिल करके अच्छी जॉब पाता, गर्ज से उसका पूरी की पूरी ज़िंदगी एक हाई लेवल की ज़िंदगी रहती। उसका मेन जो बुनियाद है वो पहली नेमत है दिमाग, जिसके हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मालिक है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो सेहत है। कई लोगों के पास दिमाग होता है, अल्लाह ताला दिमाग की नेमत से नवाजता है, मगर सेहत ये एक अहम चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सेहत याफ्ता है, सेहत याब है, इसलिए जो है हम यहाँ पर बैठे ये लेक्चर सुन रहे, डेली कॉलेज को आ रहे और तालीम हासिल कर रहे, मगर कई लोगों के पास सेहत नहीं है। हमारी क्लास में कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सेहत की वजह से, क्लास में हमारे 2 तालिबात ऐसी हैं जो उनकी सेहत की वजह से वो डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ताला की सेहत के शक्ल में जो है हमारे पास मैसर है। तीसरी जो चीज़ है वो वक्त है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा वक्त मिलता है पढ़ने के लिए। हमारा कॉलेज 12:30 से 4 बजे तक होता है, उसके बाद कई सारा वक्त हमें मिलता है, और कॉलेज के दौरान भी स्टडी अवर के टाइम में जो पीरियड्स खाली होते हैं, ये भी जो है हमारे पास एक बड़ी नेमत है। देखिए वक्त जो है ज़िंदगी का जो पेड़ है, ज़िंदगी अगर एक पेड़ की मानिंद है तो वक्त के जो मिनट्स है वो कुल्हाड़ी की मानिंद है। ज़िंदगी की कुल्हाड़ी वक्त पे जिस तरीके से जो है हम कुल्हाड़ी से दरख्त का वार करते हैं, वैसा एक एक मिनट हमारी ज़िंदगी पे वक्त का वार है, और जो एक मरतबा वक्त गुजरता है वो वापस नहीं आता। हमारे पास एग्ज़ाम के लिए और 10 से 15 दिन है, और शायद फर्स्ट ईयर के लिए 15 से 20 दिन का वक्फा है। तो इस वक्त को जो है हम गनीमत जाने और इस वक्त का जो है हम सही इस्तेमाल करें। नेक्स्ट जो चीज़ है वो सलाहियत है। ये सबसे अहम नेमत अल्लाह ताला की है। अगर हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुमार करना चाहें तो ये नामुमकिन है। उसमें से सलाहियत, टैलेंट, कोई लड़की ऐसी होती है जो जल्दी याद कर सकती है, कोई लड़की ऐसी होती है जो जल्दी एक्सप्लेन कर सकती है, अच्छे तरीके से जो चीज़ है उसको समझ सकती है और दूसरों को एक्सप्लेन कर सकती है। यानी कि तरह तरह से अल्लाह ताला ने हमारे अंदर टैलेंट रखा है, खूबियों को रखा है। तो ये एक अहम नियामत है। आप इन 4 नियामतों को नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, और इस बात का तहिया कीजिए
کہ ہم ان 4 نعمتوں کا دماغ، صحت، وقت اور صلاحیت، یہ 4 نعمتوں کا ہم اچھے سے اچھا استعمال کریں گے اور اس کو استعمال کر کے جو ہے ہم ہمارا ایک مقصد بنائیں گے، ایک ٹارگٹ بنائیں گے کہ ہم وہ لیول کے مارکس جو ہے ہمیں حاصل کرنا ہے. نیکسٹ اب دیکھیے، چونکہ ہمارے ماں باپ بھی ایک ہمارے لیے نعمت ہے اور ماں باپ ہماری ہر خوشی پہ جو ہے خوش ہوتے ہیں اور انہیں ایک امید ہوتی ہے، وہ ہمارے سامنے ظاہر نہیں کرتے ہمارے ماں باپ. آپ یقین مانیے، ڈیلی جب آپ تیار ہو گئے کالج کے لیے بیگ لے کے گھر سے نکلتے ہیں، اس وقت آپ کے پیرنٹس کے دل میں ایک آرزو، ایک امید کی کرن روشن ہوتی ہے کہ آج میری بیٹی کچھ نہیں پڑھیں گی. ایک ایک دن گزر رہا ہے، اس کے کالج کے ایام ختم ہو رہے ہیں، اس کے ایگزامس آ رہے ہیں. آپ کے والدین ہمارے سامنے ظاہر نہیں کرتے مگر ان کے دلوں میں ایک امید ہوتی ہے کہ جب رزلٹ آئے گا تو سب سے اول میری بیٹی آئے گی، سب سے اول میرا بیٹا آئے گا. یہ ہمارے سامنے چیزیں ظاہر نہیں ہوتی مگر یہ ان کے دلوں میں پنپتی ہے اور ایک امید ان کے دلوں میں جاگتی ہے. تو ہم ہمارے ماں باپ کے لیے بطور تحفہ کیا دیں گے؟ آپ مجھے بتائیے، ماں باپ کے لیے سب سے اچھی چیز، ان کے لیے سب سے خوشی کی چیز کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگوں کا کیا اوپینین ہے؟ ماں باپ کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہوگی؟ ماں باپ کے لیے اگر ہمارے ماں باپ کس چیز سے زیادہ خوش ہوتے ہیں؟ جی بالکل، کہ ہمارے والدین کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اچھا پڑھے، ہمارے بچے تمام بچیوں سے اچھے رہیں. وہ ان کا جب میمو دیکھیں گے، مارکس شیٹ دیکھیں گے تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب میں تمام بچیوں کی مارکس شیٹ دیکھوں تو میری بچی کے، میرے بچے کے مارکس سے زیادہ ہوں. تو جب ان کی یہ خواہش ہے اور اس سے ان کو خوشی ملتی ہے تو ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم بطور تحفہ اس سیمسٹر کے سب سے زیادہ ٹاپ کی شکل میں جو ہے ہم ہمارے مارکس ہمارے پیرنٹ کو دیں. حالانکہ اس سے ان کی ذات کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اس سے ہماری ذات کو فائدہ ہے مگر خوشی ہمارے سے زیادہ ان کو ہے. تو جہاں پر ہمارے ماں باپ ہمارے اتنے ایفرٹس لگاتے، کئی جو ہے ایوریج فیملی سے رہتے، کئی بلو ایوریج فیملی سے رہتے، اس کے باوجود جو آگے یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارے ماں باپ ہمارے پیچھے ایفرٹس لگا رہے ہیں. تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم بطور تحفہ ہمارے ماں باپ کو اس ایگزام میں اچھے سے اچھے مارکس دیں. نیکسٹ آئیے، اور سب سے پہلے چیز ذہن میں کلیریفائی یہ کر لیں کہ دیر از نو شارٹ کٹ فار سکسیس، کہ کامیابی کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. شارٹ کٹ سے مراد کیا ہے؟ چیٹنگس، پیپر سیٹنگس، یا پھر امپورٹنٹ کچھ پڑھ لیں، یا پھر عام طور پہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی آ جاؤ، کچھ لکھ کے آ جائیں تو پاس ہو جاتے. تو یہ شارٹ کٹس ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں کامیابی نہیں ملتی. آپ دیکھیے، اگر کوئی ٹاپ آنے کا سوچتا ہے تو وہ پورا سلیبس پڑھتا ہے. جب وہ پورا سلیبس پڑھتا ہے تو وہ ٹاپ نہیں آتا بلکہ اس کا 3rd 4th رینک ہوتا ہے، اور جو 2nd رینک کا سوچتا ہے اس کا 5th رینک ہوتا ہے. تو یہ ریشیو جو ہے عام طور پر پایا جاتا ہے ایگزامس میں. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کامیابی کے لیے کوئی شارٹ کٹ طریقہ اختیار نہ کریں. ہمارے پاس وقت ہے، ہم ڈیلی بیٹھے ٹائم ٹیبل کے حساب سے جو ہے ہم ہمارے سلیبس کو سیٹ اپ دیں اور اسی انداز میں جو ہے ہم پڑھیں. تو ایک بات ذہنوں میں کلیئر رکھ لیجئے کہ ہمارا کالج ہے، ہمارا سیلف سینٹر رہے گا، ہم جو ہے یہاں پہ شاید ایزیلی پاس ہو جا سکتے ہیں. ایسا ذہنوں میں مت رکھیے. اگر آپ یہاں پہ پاس بھی ہو گئے تو آپ اچھے مارکس گین نہیں کر سکتے، اور آپ اچھے مارکس گین نہیں کر سکے تو ہمارا کریئر اتنا بھی جو ہے خاطر خواہ نہیں ہوتا. تو کامیابی کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اور جو چیٹرز ہوتے ہیں وہ پاس ہوتے ہیں مگر وہ ون نہیں ہوتے، جیتتے نہیں. وہ پاس ہو جاتے ہیں مگر وہ جیتتے نہیں، کیونکہ اب تک ہمارا جو تعلیمی مرحلہ تھا انٹرمیڈیٹ تک، ہم صرف مارکس کو دیکھتے تھے. ہماری جو پہچان ہوتی تھی ہمارے مارکس سے ہوتی تھی. مگر چونکہ اب ہم اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہم جو گریجویشن کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو یہ ہمارا رویہ خطی طور پہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم ایسے اسٹوڈنٹس ہو کہ ہمارے سلیبس میں سے کوئی ایک عنوان، کوئی ایک ٹاپک اگر ہمیں کوئی پوچھ لے تو ہم اس بات کے اہل ہوں کہ ہم اس عنوان کو اچھے سے اچھے انداز میں سمجھا سکیں. ہم ایسے مخاطب ہوں گویا کہ ہم اس سبجیکٹ کے ماہر ہوں. اس طریقے سے جو ہے ہمارا رویہ ہونا چاہیے، اس طریقے سے جو ہے ہمارا سلیبس میں گرپ ہونا چاہیے، ہمارا سبجیکٹ پرفیکشن اس لیول کا ہونا چاہیے کہ ہم ہر سوال کا آنسر دے سکیں. تو جو چیٹنگ کرتے ہیں وہ پاس تو ہوتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتے. نیکسٹ
اور ہمیشہ پرعزم رہیے. اور عام طور پہ ہوتا ہے ایسا کہ ہم لوگ خود سے زیادہ اس بچی کو اچھا سمجھتے ہیں جو اچھا پڑھتی ہے. آگے آپ کو مثال کے ذریعے وہ بھی بات آئے گی کہ ہم سب سے زیادہ پرعزم رہیں. سیلف سیٹسفیکشن ہمیں رہنا چاہیے, ہم خود پہ مطمئن رہیں. آپ دیکھیے اگر ہم خود پہ بھروسہ نہیں رکھیں گے, اگر ہم خود یہ سوچ لیں گے کہ نہیں میں نہیں کر سکتی, نہیں میں نہیں کر سکتا, تو آپ واقعی نہیں کر سکتے. میں آپ کو ایک مثال دوں گا. جی یہاں پر آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کیا دکھ رہا ہے. وہاں پر ایک بلی ہے, لیکن اس کا سایہ جب اسے دیکھتی تو وہ ایسا محسوس کرتی کہ میں ایک شیر کی مانند ہوں. تو ہمارے اندر جو چھپا ہوا شیر ہے اس کو بھی جو ہے ہم ایسے ہی محسوس کریں کہ ہم کوئی معمولی نہیں ہے. بھلے ہی جو ہے ہمارا جسم چھوٹا ہے, لیکن ہمارے پاس جو دماغ کی طاقت ہے وہ کوئی عام طاقت نہیں ہے, وہ کوئی معمولی طاقت نہیں ہے. تو ہم ہمیشہ پرعزم رہیں, سیلف سیٹسفیکشن رہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ چاہے تو تجربہ کر بھی سکتے ہیں. ایک برتن لے لیجیے یا پھر ایک کانچ کا گلاس لے لیجیے. ایک کانچ کا گلاس لینے کے بعد اس کے اندر ایک کیڑے کو ڈالیے اور اس کو ایسا پیک کیجیے. وہ کیڑا آتا, ٹچ کرتا چلے آتا, پھر آتا, کوشش کرتا کہ یہ دروازہ تو بند ہے, وہ پھر نیچے چلے آتا. آپ اگر ڈیلی ایسا ہی رکھیں گے, آپ دیکھیے 1-2 گھنٹے کے بعد وہ کیڑا یہاں پہ آتا, آپ ڈھکن ہٹا دیجیے, یہاں تک آتا پھر چلے آتا, یہاں تک آتا پھر چلے آتا. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس کے دماغ میں یہ بات ہے کہ دروازہ بند ہو چکا ہے. تو ہمارے ذہن سے یہ جو چیز ہے, یہ جو سوچ ہے, اس کو نکال دیں کہ میں نہیں کر سکتی, میں نہیں پڑھ سکتی, میں جو یہ یاد نہیں کر سکتی, میں صرف امپورٹنٹ کوشچنس پڑھ لوں گی. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ڈھکن ہے یہ کھلا ہوا ہے, ہمارا مائنڈ بہت براڈ ہے. تو ہم اس چیز کے آگے جائیں اور آگے جا کر سوچیں کہ میں صرف ایک نہیں بلکہ ایک گھنٹے میں 2 سے 3 آنسرس پڑھ سکتی ہوں. اس طریقے سے جو ہے ہمارا عزم ہونا چاہیے. اس طریقے سے جو ہے ہمارا ہم کانفیڈنٹ رہے کہ میں کر سکتی ہوں. نیکسٹ, اور دیکھیے کامیاب ہونے کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں. اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پلاننگ. سب سے پہلے منصوبہ بندی کریں اور ایسے ہی کریں کہ میرے پاس کتنے دن ہیں, اتنے دنوں میں مجھے کتنا سلیبس گین کرنا ہے, اور میں کون سے چیپٹر میں ویک ہوں, میں کون سے چیپٹر میں کون سی لینگویج ایزیلی پڑھ سکتا ہوں. اردو ہے جلدی پڑھ لے سکتے, 1 گھنٹہ کافی ہے, مگر اکنامکس اور دوسرے سبجیکٹس ہیں ان کو 2 گھنٹے دینا. تو اس طریقے سے جو ہے ہم پلاننگ کر لیں پہلے, اور پھر اس کے لیے ہارڈ ورک کریں. ایسا نہیں کہ آپ پلاننگ کریں زبردست ایسی کہ میں صبح فجر سے لے کے 7 بجے تک اکنامکس پڑھوں گی, پھر 7 سے 8 تک ریسٹ, پھر 8 سے 9 تک پولیٹیکل سائنس. آپ پورا شام تک کا جو ہے ٹائم ٹیبل بنا لیں, مگر اس میں کاہلی کریں. اور اگر اس ٹائم ٹیبل پر اگر آپ عمل کرانے ہوں گے تو آپ جو چیز سوچے ہیں, کہ آپ جو چیز سوچیں اس میں صرف آپ کا مقصد ہی نہیں ہے, بلکہ اس میں ماں باپ کا تحفہ ہے, ماں باپ کی امیدیں ہیں, اور سب سے اہم چیز ہمارا کریئر ہے. اس چیز کو جو ہے ہم قطعی طور پہ نہ بھولیں. تو یہ اہم چیز ہے. پہلے تو ہم پلاننگ کر لیں, پھر سیکنڈ جو چیز ہے اس پہ ہارڈ ورک کریں, پھر ٹائم مینجمنٹ. یہ سب سے اہم ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ ایک ہی سبجیکٹ زیادہ پڑھ لے رہے, اردو لینگویج ہے بول کے اس کو ٹوٹلی چھوڑ دے رہے, یا پھر انگلش ہارڈ ہے بول کے اس کو ہی زیادہ وقت دے دے رہے, پولیٹیکل سائنس اور ہسٹری کو چھوڑ دے رہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ آپ ٹائم کو ایسا مینیج کرنا کہ پورے کے پورے جو ہے سلیبس اس میں پورے کے پورے جو ہے سلیبس بھی اس میں آ جانا, اور پورا کا پورا جو ہے ہمارا مواد ہے وہ بھی آ جانا. اور ٹائم مینجمنٹ ایسا رکھنا کہ ہم جو پلاننگ میں لکھے ہیں کہ آج میں یہ آنسر پڑھوں گی, 2 آنسر 3 آنسر, وہ جو ہے کمپلیٹ ہونا. ٹائم جو ہے ویسا مینیج کرے. اور سب سے اہم چیز جو میں آپ کو ابھی بولا کہ ہمارے جو مقصد ہے وہ ہمارے آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونا. آپ کے مقصد میں آپ اس چیز کو بھی کاؤنٹ کر لیجئے کہ آپ کے ماں باپ کی امیدیں ہیں, آپ کے اچھے مارکس جو ہے آپ کے والدین کے لیے تحفہ ہے, اس میں میرا کریئر ہے. اور آپ جب پی جی میں ایڈمیشن لیں گے تو آپ کے ڈگری کے ویلیو ڈگری کے جو مارکس ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہوں گے. تو یہ 4 چیزیں جو ہے تو یہ 4 چیزیں جو ہے آپ اپنے ذہنوں میں پیوست کر لیں کہ یہی چیزیں ہیں جس کی بنا پہ ہمارے پورے کے پورے مارکس ہم حاصل کر سکتے ہیں.
यही मेन हथियार है। प्लानिंग, हार्डवर्क, टाइम मैनेजमेंट और फोकस ऑन द गोल। हमारे जो आंखें हैं वो हमारे मकसद से ना हटे। ये 4 चीज़ें आप याद रख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कि ये चीज़ों के तहत जो है मुझे पढ़ना है। और ये जो अब हमारा लेक्चर है उसको हमने 3 हिस्सों में जो है तकसीम किया है। एक तो है प्री एग्जाम्स, हम एग्जाम से पहले कैसा रहे, हम एग्जाम के दौरान कैसा रहे, और एग्जाम के बाद हमारा क्या काम है। हमारे जल्दी उसको కూడా మదే నేను खाली कार्ड से कार्ड से इधर ये तो ये जो लेक्चर है उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। इम्तिहान की तैयारी कैसा करें, पहले तो इम्तिहान से पहले यानी कि अभी हमारे एग्जाम्स को 15 से 20 दिन का वक्फा है। जो फाइनल ईयर है उनके लिए 6 से 7 दिन का वक्फा है। तो एग्ज़ाम से पहले हम कैसा रहें वो एक हिस्सा है, और एग्ज़ाम के दौरान यानी कि जब हमारे एग्ज़ाम्स चलेंगे तो उस दौरान हमें कैसा रहना चाहिए, कैसा जो है पढ़ना चाहिए, वो एक हिस्सा है। और तीसरा जो चीज़ है वो आफ्टर एग्ज़ाम कि हम एग्ज़ाम के बाद हम कैसा रहें। हमारा लेक्चर ये 3 हिस्सों पर जो है मुश्तमिल है। आइए देखेंगे प्री एग्ज़ाम्स, हमें इम्तिहान से पहले कैसे रहना है। इम्तिहान से पहले आगे बढ़ाते आयरन आर्टिस्ट हटाओ, क्लिक मारो उस पे। आइए हम देखेंगे कि इम्तिहान से पहले जो है हमें कैसा रहना है। सबसे अव्वल जो चीज़ है प्लान द स्टडी टाइम टेबल। हमें टाइम टेबल बनाना है। अगर हमारे पास मेहनत करने की जुस्तजू है, हम ये चाह रहे हैं कि हम पढ़ ले सकते हैं, हार्ड वर्किंग है, और होता भी ऐसा नॉर्मली कई बच्चियाँ जो है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है और कई बॉयज़ भी हार्ड वर्किंग होते हैं, मगर उन्हें टाइम मैनेजमेंट में अक्सर ये रहनुमाया खुतूत नहीं मिलती है कि हम टाइम को कैसे मैनेज करें। तो सबसे अव्वल जो चीज़ है कामयाबी के लिए बुनियाद है मनसूबाबंदी। अगर हम कामयाब होना, इम्तिहान से पहले मनसूबाबंदी जरूरी है। प्लानिंग जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम सही प्लान नहीं कर सकेंगे तो सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, और अगर जब सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो हमारा रिजल्ट भी सही नहीं आता। तो मनसूबाबंदी जो है बुनियाद है। मैं आपको मिसाल के तौर पे बताता हूँ कि मनसूबाबंदी कैसे करें, और मैं खुद मेरी प्लानिंग कर चुका हूँ और वही आप लोगों तक इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद क्लासेस में जो है मैं शेयर करूँगा कि हम जो है कैसे पढ़ें। सुबह का जो वक्त होता है वो उस टाइम पे फजर के बाद हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। तो हम ऐसे औकात में जब हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश हो, ऐसे मजमून को सेलेक्ट करें जो सबसे मुश्किल होता है, जैसे कि इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है। अपने अपने जहन से जो मुश्किल दिखता है उस मजमून को जो है हम वैसे टाइम पे ये करें, और सुबह फजर से लेके हम रात में 10 बजे तक का टाइम टेबल बनाएं। 10 बजे के बाद हम खत्ती तौर पे ना पढ़ें, मैक्सिमम 10:30, उसके बाद जो है हम सो जाएं, फिर फजर के बाद जो है हम पढ़ना शुरू करें। तो अपना टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए वो फजर से स्टार्ट होता हो और 10 साढ़े 10 का ख़त्म होता हो। तो जो है हम एक बेहतरीन तरीके से बग़ैर मुश्किल के इस पर अमल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि जब हम पढ़ते हैं उस दौरान हम शॉर्ट ब्रेक्स भी लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ने बैठ गए और कंटिन्यूस पढ़ रहे आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा हो गया। इससे जो है हमारा माइंड पे वजन आ जाता है, जिसकी वजह से भूलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं आपको बताऊं, इंसानी जो दिमाग होता है वो रोज़ाना 60 to 70% भूलता है। यानी अल्लाह ताला कुदरती तौर पे ये चीज़ रखा है कि हम रोज़ाना 60 से 70% भूलते रहते हैं। तो हम ये करें कि आधा घंटा होने के बाद, 20 मिनट होने के बाद उठकर पानी पिए, फिर जाके उसी जगह पे बैठ के और जो है पढ़ना शुरू करें। इससे जो है हमें रिलैक्सेशन मिलता है, और इससे जो है हमारी जो बॉडी है जहन से लेके पूरा का पूरा जो है रिलैक्स महसूस करती है। इससे पढ़ने में आसानी होती है। नेक्स्ट जो चीज़ है, जब आपके उस्ताद आपको पढ़ाते हैं
तो उस दौरान जो आप नोट्स लिखते हैं, मिसाल के तौर पे आप पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर सुन रहे हैं, क्लास सुन रहे हैं, उस दौरान जो अहम नुकात आए जैसे कि दफात आ सकते या फिर साल के ये साल में ये वाक़या हुआ, ये साल में ये दफात में चेंजेस किए गए, इस साल जो है हिस्ट्री का ये हुआ, इस राजे का जो दौरे खिलाफत था, दौरे हुकूमत था, वो ये साल से ये साल तक था। तो ये जो लेक्चर्स होते हैं हमारे, उस दौरान जो हम नोट्स करते हैं उसको भी एक मरतबा निकाल के देखें, ताकि जो हम क्लास में सुने और एक मरतबा देखने से हमारे माइंड में मजबूती से बैठ जाता है और हम उसे भूलते नहीं हैं। और हम जल्दी डिस्ट्रैक्ट ना हो। हम जब पढ़ते बैठे तो ऐसा ना होना कि लेक्चर के नाम पे हर 5 मिनट टूट जा रहे, आप रेस्ट के नाम पे हर 5 मिनट टूट जा रहे, ब्रेक के नाम पे हर 10 मिनट टूट जा रहे, ऐसा ना हो। इससे जो है हमारा दिमाग जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, हमारा दिमाग एक जगह तवज्जो नहीं कर सकता। तो ये कुछ अहम नुकात थे जो आप लोगों के सामने आए। नेक्स्ट, और हमारे मोटिवेशन के लिए यहाँ पे कुछ मिसालें दी गई कि सबसे पहले हाई गोल सेट करना। आप मुझे बताइए कि क्यों हम हाई गोल सेट करें, क्यों मैं ज़्यादा मार्क्स लाऊं, क्यों मैं टॉप आऊं। मतलब जब आप अच्छा, यहाँ पे कितने लोग ऐसे जो टॉप करना चाह रहे हैं, मतलब जो छोटा हाथ उठा है वो हाथ मार चाहे तो इतने लोग यहाँ पे टॉप करना चाह रहे हैं। अब मुझे बताइए, इज इट पॉसिबल, क्या मुमकिन है? मुमकिन है या नहीं है? आप लोग हाथ उठाए और मुमकिन है भी नहीं बोल रहे, नहीं भी नहीं बोल रहे, मतलब नहीं है। वो है, बिल्कुल है। वो इसलिए है क्योंकि अल्लाह ताला तमाम लोगों को 2 आंखें दिया, तमाम लोगों को एक दिमाग दिया। ऐसा है क्या जो टॉपर आते, जो लास्ट ईयर आपके इंटरमीडिएट में आपकी क्लास की बच्ची टॉप आई, आपके क्लास का बच्चा टॉप आया, उसको ऐसा था क्या 4 आंखें थी, 2 दिमाग थे? नहीं थे, वो भी तो हमारी तरह था। मगर मैं जो आपको मिसाल दिया कि जो बोतल में कीड़ा था, वो दरवाज़ा खोलने के बाद भी, एक मोटिवेशन के लिए मैंने मिसाल दी कि एक कीड़े को जो है हम लें और उसको जो है कांच के बोतल में रखें और पैक कर दें। वो कीड़ा 1 घंटे तक कोशिश करेगा, यहाँ तक आएगा, बंद दिखेगा, फिर चले जाएगा, फिर आएगा, फिर चले जाएगा, फिर आएगा, फिर चले जाएगा। जब आप 1 घंटे के बाद उस ढक्कन को हटा देंगे तो भी वो आएगा और जाएगा, क्योंकि वो उसके जहन में है कि दरवाज़ा बंद है, मैं नहीं जा सकता। ये चीज़ उसके जहन में वायवस्त होगी। तो हमारा भी माइंड, जो लोग ये सोचते हैं कि मैं टॉप नहीं कर सकती, उठे हैं, अगर रिजल्ट के बाद ये पूछा जाए कि कितने लोग टॉप किए हैं, तो भी ये पूरे के पूरे हाथ उठे हैं। ऐसी जो है मैं भी आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पे एक मिसाल है कि हाई गोल सेट क्यों करें। तो हसनुल बन्ना शहीद रहमतुल्लाह अलैह मिस्र में जो है ऑर्गेनाइजेशन इख्वानुल मुस्लिमीन के नाम से, उसके बानी है हसनुल बन्ना शहीद रहमतुल्लाह अलैह। तो उन्होंने कहा कि आप एक पत्थर को उठाएं और उस पत्थर, आपका जो निशाना होना चाहिए वो चांद होना चाहिए। क्या ये मुमकिन है? हम पत्थर से चांद को जो है कर सकते हैं क्या गोल? पॉसिबल है क्या? नहीं है। और जब हम ये सोचेंगे कि मुझे चांद तक इस पत्थर को पहुंचाना है, तो हम क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा कुव्वत लगाते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमारा मकसद क्या है? चांद तक पत्थर पहुंचाना है। मगर वो चीज नामुमकिन है, फिर भी हमें इस टारगेट को पूरा करना है। ये सोचकर जब हम पत्थर उठाएंगे तो ताकत हम लगाएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा मकसद रहेगा उतना ज्यादा हम ताकत लगाएंगे। अगर मैं आपको बोला ये छत पे करे तो आप यूं भी फेंक देंगे, है ना। उससे ज्यादा अगर 3rd फ्लोर तक हो तो आप थोड़ी कुव्वत लगाएंगे। जब हम चांद का गोल सेट करेंगे तो हम पूरी की पूरी ताकत लगाकर जो है फेंकेंगे। तो उससे होता है कि वो पत्थर चांद तक तो नहीं पहुंचता, मगर सबसे ज्यादा हाइट तय करता है ना। एक सर्टेन हाइट तक वो पहुंचता, मैक्सिमम हाइट वो क्रॉस करता है। वो क्यों करता? क्योंकि हम बड़ा मकसद रखें। अगर आप जो है छत तक मकसद रख लेंगे कि मुझे सिर्फ पास होना है, तब आप इजीली जो है पास हो सकते हैं। लेकिन आपके सर को सरों के दौरान छुप जाएगा जिनके मार्क्स हाई होते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट बड़ा रखना कि मुझे 600 में से 595 मार्क्स लाना है कंपलसरी। और ये मुमकिन है, ये मुमकिन है। चांद तक पत्थर पहुंचना जो है नामुमकिन है, लेकिन ये आपके मार्क्स आना मुमकिन है। तो आप सबसे पहले हाईएस्ट गोल रखिए। और जो मैं अभी आपको बोला कि जो विनर्स रहते हैं, जो टॉपर्स रहते हैं, अल्लाह ताला जो है उनको 2 दिमाग नहीं दिया, बल्कि वो भी हमारी तरह एक दिमाग के मालिक है। उनके
पास भी सेहत है, दिमाग है, टैलेंट है और वक्त है। मसला यहाँ पे पैदा होता है कि वो इन नियामतों को इस्तेमाल करते हैं और हम इन नियामतों को इस्तेमाल नहीं करते। हम इन नियामतों को टीवी देखने में, टीवी सीरियल्स में और खाली हंसी मजाक में और टाइम पास में गुजार देते हैं। और जो विनर्स होते हैं, जिनके पास जो भी हमारे जैसे है बिल्कुल तबई तौर पे, मगर फिर भी वो विनर इसलिए है कि वो टैलेंट को, वो माइंड को, वो टाइम को और वो हेल्थ को सही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर बैठा हुआ हर शख्स विनर है, हर वो शख्स विनर है, हर वो बच्ची, हर वो बच्चा विनर है जो इन 4 चीजों को इस्तेमाल करेगा। नेक्स्ट, आइए कि हम प्लानिंग कैसे करें कि हम जो सुबह से शाम तक, रात तक का जो हमारा शेड्यूल है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने वो बना लिया है और मैं आप लोगों को वो शेयर भी करूंगा। मगर उससे पहले हम ये करें कि हम सबसे पहले पूरे सिलेबस का जो है हम टाइम टेबल बना लें, जिसके अंदर लैंग्वेजेस भी हो, जिसके अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी हो, उर्दू, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये 5 मजमून की कवर होना, ऐसा टाइम टेबल बनाना। आप ऐसा नहीं करेंगे कि उर्दू लैंग्वेज है, उर्दू को जो है कम टाइम लगेगा, इसलिए लिहाजा हम इसको, इस सब्जेक्ट को टाइम टेबल में नहीं रखेंगे। ऐसा आप खत्ती तौर पे नहीं करेंगे, बल्कि पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स का जो है हम टाइम टेबल बनाएं और उसके बाद हम हफ्ते के एतबार से हर चैप्टर वाइज जो है हम सिलेबस को बनाएं। चैप्टर वाइज यानी कि आप उर्दू में आपके जो 10 गज़लें हैं, 10 नसर है, 10 असबाक है, तो आप ऐसा उसके अंदर टाइम टेबल ऐसा बनाए कि मैं आज एक गज़ल कंप्लीट कर लूँगी। और ऐसा नहीं होना खत्ती तौर पे कि आप एक मरतबा कोई आंसर पढ़ रहे, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे, कोई सिलेबस पढ़ रहे। आप मिसाल के तौर पे आप एक नजरिया पढ़ रहे, तो उसको एक मरतबा पढ़ने के बाद आप टोटली उसकी तरफ देखे भी नहीं। ऐसा खत्ती तौर पे मत कीजिए, रिवीजन कंपलसरी है। आप एक मरतबा पढ़े, पढ़ने के दौरान एक मरतबा लिख ले, फिर जब एग्जाम को जाते वक्त आप मरतबा वही नोट्स खोल के देखिए। आप ऐसा महसूस करेंगे कि वो आपका आंसर आपके जहन में पूरा का पूरा ताज़ा है। और जब आप पढ़ने के बाद किसी चीज़ को लिखते हैं और एग्जाम में उसको याद करते हैं, तो बहुत जल्द आपको याद आ जाती है। आप एक्सपीरियंस करके देखिए इस एग्जाम में। तो जो चीज़ हम पढ़ रहे, पहले तो हम पूरे सिलेबस का बनाएं, फिर एक एक चैप्टर वाइज जो है हम पूरा का पूरी प्लानिंग करें। नेक्स्ट, और सबसे अहम चीज़ ये है कि हम सही स्टडी मटेरियल का इंतखाब करें। ऐसा नहीं होना कि पॉलिटिकल साइंस की आपकी सहेली के कॉलेज में पढ़ती है, वो लाके दी कि देखो ये भी सिलेबस अच्छा है, आप वो भी ले लिए, गौतमी कॉलेज का भी ले लिए, या फिर आपके क्लास में कोई पुराने सहेलियाँ वो दिए, सो नोट्स है वो भी ले लिए, आप पूरे जमा कर लिए, तो ये रॉन्ग है। सबसे अहम जो चीज़ है, हम सही मवाद का इंतखाब करें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो फैकल्टीज है, वो बेहतरीन मवाद जो है हमको मुहैया करते हैं और यही मवाद दूसरे कॉलेज वाले भी अपनाते हैं। तो हम सबसे पहले अच्छे से अच्छा मवाद इस्तेमाल करें। अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं मिल रहे तो हम मैम से पूछे, सर से पूछे, या फिर कोई एक मजमून छूट जा रहा है, कोई एक लेसन आपको नहीं मिल रहा, तो उसका भी जो है नोट्स हम ले लें। ये सबसे बुनियादी चीज़ है कि हम सबसे पहले सही मटेरियल, सही मवाद का इंतखाब करें। अगर हमारे पास मवाद ही नहीं रहेगा तो हम कैसे पढ़ सकते हैं? ये जो है अहम चीज़ है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, सेल्फ नोट्स, जब हम पढ़ेंगे, किसी आंसर को हम याद करेंगे, तो हम उसको एक मरतबा लिख लें, ताकि इम्तिहान में जब हम याद करें तो हमें आसानी से वो याद आ जाए। नेक्स्ट जो चीज़ है, अंडरलाइन है। कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनको हम अंडरलाइन कर लें, जो अहम पॉइंट्स होते हैं। उससे ये होता है कि हमारे जहन में भी वो अंडरलाइन हो जाता है। मिसाल के तौर पे आप किसी एक चीज़ को पढ़ रहे हैं, उसमें कोई एक डेट आ गई, 1935 हो, कोई भी हो, आप पढ़ने के दौरान उस डेट को अगर ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे तो आपके जहन में वो अच्छी तरह से याद रह जाएगी, वाक़या क्या हुआ था और डेट। इसको अगर हम ऐसा पढ़ने के दौरान अंडरलाइन कर लें तो ये जो चीज़ है वो हमारे जहन में अच्छी तरह बैठ जाती है। नेक्स्ट जो चीज़ है, ग्रुप डिस्कशन। ये सबसे, इसका जितना ज़्यादा फायदा है उतना ज़्यादा नुकसान भी है। वो कैसे कि हमें ग्रुप बना ले, 5 लड़कों का या 5 लड़कियों का। आप जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दे, एक थ्योरी दे दे, इकोनॉमिक्स की हो, हिस्ट्री की हो, या फिर पॉलिटिकल साइंस की हो, कौन सी भी हो, हम एक एक आंसर याद करें, बैठें और बैठने के बाद सब लोग अपना अपना सुनाएं।
कोई है वो रियासती हुकूमत के ताल्लुक से बोले कि रियासती हुकूमत ऐसे ऐसे होती है, इस दफ़ा में ये है, कोई बुनियादी हुकूक के ताल्लुक से बोले। उससे होता ये कि हम एक पढ़ के आ रहे मगर 4 सुन रहे हैं एक्स्ट्रा, वो भी जो है हमें याद होता है। जो चीज़ हम सुनते हैं वो हमें ज़्यादा देर तक याद रहती है बनिस्बत वो चीज़ जिसे हम पढ़ते हैं। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए कि जो चीज़ हम सुनते हैं वो हमें बहुत देर तक याद रहती है बिल मुकाबिल उस चीज़ के जो हम पढ़ते हैं। तो हम इस चीज़ को जो है अपनाएं कि हम 2-4 सहेलियों का, 5 सहेलियों का, 6 सहेलियों का एक ग्रुप बनाने, फिर एक एक आंसर याद करके आके जो है इम्तिहान से कब इसी दौरान भी आप कोई क्लास खाली है तो आप जो है इस चीज़ को पढ़ें, सब लोग अपनी अपनी थ्योरी पेश करें, तो इससे जो है हम अच्छा याद कर सकते हैं। जब आप एक एक मरतबा सुन लेंगे फिर जब आप एग्जाम के टाइम पे पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल ईजी दिखेंगे, एकदम आसान तरीके से। ये आसान हथियार हमारे पास है, मगर ऐसा नहीं होना कि जब 5 जमा हो गए, अकेले कबूल है की स्टडी बोल रहे, अकेले बेहद की स्टडी बोल रहे, अकेले फला सीरियल की बोल रहे, ये जो है खत्ते तौर पे नहीं होना। और ना कोई यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन करने के दौरान कोई भी जो है बिग बॉस के एपिसोड को एक्सप्लेन नहीं करना खत्ते तौर पे। KBC ये जो है जिसका जितना बड़ा फायदा है उतना बड़ा नुकसान भी। आमतौर पे बॉयज के लिए तो मैं सेटिस्फाई हूँ, मगर खवातीन का, पूरे आलम की खवातीन का ये मसला है। तो आप इस चीज़ का जो है ख्याल रखें। हमारे एग्जाम करीब है, हम थोड़े दिन इन चीज़ों को जो है अवॉइड करेंगे और ना हम ग्रुप में कोई गैर ज़रूरी बातें करेंगे, ना हम फंक्शन की करेंगे, ना हम जो है किसी भी तरीके से कोई भी बेकार गुफ्तगू हम नहीं करेंगे। और आज के क्वेश्चन, जैसे कि लेक्चर के स्टार्टिंग में भी जनाब डॉक्टर असलम फारूकी साहब ने हमारे सामने बात करी, क्वेश्चन पूछना चाहिए, इससे इंसान सीखता है। आप सवाल करने से बिल्कुल भी नहीं शर्माना चाहिए। आमतौर पे क्लास में होता है ऐसा, मैडम अगर कुछ पढ़ा रहे वो हमें समझ में नहीं आया, मैं चाह रहा हूँ पूछना मगर मैं इसलिए रुक रहा हूँ, कह रहे मैं अगर पूछूंगा तो सब हंसते, मुझे बेवकूफ़ समझते। और याद रखिए उस टाइम पे बेवकूफ़ बनना अच्छा है, एग्जाम में बेवकूफ़ बनने से अच्छा है हम क्लास में बेवकूफ़ बन जाए, है ना। तो सवाल करने से खत्ती तौर पे ना शर्माए। वो लोग बेवकूफ़ नहीं होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं, बल्कि असल बेवकूफ़ और जाहिल लोग वो होते हैं जो सवाल करने पे हंसते हैं। इस बात को आप याद रखिए। नेक्स्ट, और जब आप पढ़ते हैं तो आप पीसफुल इन्वायरमेंट ले, ऐसे जगह पे ना बैठे जहाँ पे घर में बच्चे खेलते हो या फिर टीवी की आवाज़ आती हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे टीवी चल रही है हम इधर रुख करके पढ़ रहे, तो ये जो है डिस्टर्बेंस होता है इससे बहुत ज़्यादा। तो पीसफुल माहौल, सुबह के टाइम पे हम फजर के बाद छत पे बैठ के पढ़ें, या फिर हमारे घर में जो बालकनी होती है वहाँ पर जहाँ पे हमारा पीसफुल हो, हमारा जहन एकदम सुकून महसूस करता हो, वैसी जगह पे जो है हम पढ़े। नेक्स्ट चीज़ है जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करते रहना चाहिए, क्योंकि मैं एक बात बोला था कि इंसानी दिमाग 70 से 80% भूलता है। अगर आप एक बार आप पढ़ के उसे एग्जाम्स तक खोल रहे नहीं तो आप उस चीज़ को भूल जाते हैं। डेली रिवाइज करते रहना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ है मॉक एग्जाम्स, कि आपके जो सवाल होते हैं आप बैठे बैठे उस चीज़ को लिखिए। मिसाल के तौर पे आप क्लास में खाली बैठ के हैं, आपको कोई क्वेश्चन आप याद करें, आप उसको लिखना, बैठे बैठे एग्जाम्स लिखना कि मैं जो याद करी हूँ मुझे कितना याद है। हम जो याद करें, हम जो पढ़े, हम कितना जो है हमको याद है, उसका हम खुद जो है हम टेस्ट करें, मॉक एग्जाम्स लिखें। नेक्स्ट जो चीज़ है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ड्रिंकिंग वाटर ड्यूरिंग द स्टडी, जब हम पढ़ते हैं तो उस दौरान हमें ये चाहिए कि हम पानी पिए, दिमाग को जो है रिलैक्स दे। और प्लेइंग गेम्स, इससे मुराद ऐसा गेम ना खेलें आप जिससे जो है आप जख्मी हो जाते हो, या फिर ऐसा भी गेम ना खेलें जिससे आप जो पढ़े वो भूल जाते हो, बल्कि बैठे बैठे कुछ इंडोर गेम, कुछ भी हो सकता है, आप लोगों को बहुत से मालूम, मैं मिसाल ले दूंगा, वैसे गेम खेलें जिससे माइंड फ्रेश होता हो, वैसे गेम खेलें। नेक्स्ट, और अब ये देखिए कि प्रिपेयरिंग चार्ट्स, कि ये तो जो है बायोलॉजी का है, हम क्या करें। मिसाल के तौर पे बुनियादी हुकूक है, कितने हुकूक है, 6 हुकूक है, तो हम क्या करें, ऐसा राउंड डाल लें, यहाँ पे बुनियादी हुकूक लिख लें, इस तरह से 6 एरो मार्क डाल लें, कौन से हैं वो 6 हुकूक को जो है हम लिख दें। तो इस तरह से चार्ट्स बनाए, आप समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चार्ट्स बनाना, दफ़ा है
उस दफात को जो है हम एक चार्ट पे लिख लें, जो अहम दफात है या फिर जो अहम वाक़यात है मुग़ल सल्तनत में, एक लंबा सा जो है वो सिलेबस है। तो हम क्या करें, ऐसा लिख लें, बाबर ने इस साल से इस साल तक हुकूमत की, फलां फलां फलां, उसके जितने भी 7 बादशाह गुजरे हैं उनका जो है हम साल लिख लें, कौन सा बादशाह कब से कब तक जो है हुकूमत करा, वो आपके आईने के पास लगा दें ताकि आप दिन में 25-30 मरतबा जितने भी बार आईने के सामने जा रहे वो चार्ट्स को देख सकें। तो ये एक अच्छा टूल है कि हम जो चीज़ हार्ड होती है, याद करने में मुश्किल होती है, उसको जो है चार्ट्स बना लें। देखिए, आमतौर पे होता है ऐसा कि पर्सनल वीकनेसेस यहाँ पे जो है आ रहे कि हम क्यों टॉप नहीं कर सकते, हम क्यों अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। उसकी वजह यह है कि हम खुद से हमारे तलों से एक इमेज बना लेते हैं, एक तस्वीर हमारे जहन में सेव हो जाती है कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसा हूँ, जिसकी वजह से हम उन स्टूडेंट से पीछे रहते हैं जो अच्छे मार्क्स लाते हैं। उसमें सबसे जो चीज़ है वो लैक ऑफ प्रॉपर प्रायोरिटीज। हम किस चीज़ को अहमियत दें, हम स्टूडेंट हैं तो हम किस चीज़ को अहमियत दें, किस चीज़ को अहमियत दें भाई, हमारी तालीम, हमारे एग्जाम्स तालीम है तो हम किसको प्रेफरेंस दें, हमारे इम्तिहान को, हमारे सिलेबस को, हम जो टाइम टेबल बनाए हैं उसको जो है हम अहमियत दें। हम जो एग्जाम से जो हमारे दिन बचे हुए हैं, जो हमें गनीमत जान के जो हमें पढ़ना है, उस चीज़ को जो है हम प्रेफरेंस दें, अहमियत दें, तरजीह दें। नेक्स्ट चीज़ है फेल्यूर टू लिसन। ये हमारे पर्सनल वीकनेस है। मैम पढ़ाते हैं एक, हमारे जहन में कुछ और चलता है, तो ये खत्ती तौर पे ना हो। हम जो चीज़ हमें पढ़ाई जा रही है हम उसे मुकम्मल तौर पे सुने। ऐसा खत्ती तौर पे ना हो कि आप दावत का मंजर आपके जहन में ला रहे, आप पिकनिक का ला रहे, आप किसी सीरियल का ला रहे कि इसके बाद क्या होने वाला है, वो टेंशन में अगर आप हैं तो ये हमारी पर्सनल वीकनेस है। इस चीज़ से जो है हम दूर रहना चाहिए। जब हमें पढ़ाते हैं तो हम मुकम्मल तौर पर सुने। जब आप सुनेंगे तो आपके जहन में अच्छे से बैठ लेगा, आप एक मरतबा पढ़ेंगे तो वो रिवाइज हो जाएगा, और जब आप एग्जाम से पहले पढ़ेंगे तो आप उसे ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, जो मैंने 10th में आंसर इस चीज़ को, ऐसे जो मैंने आपको बताया, इस चीज़ को लेकर पढ़ा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो मुझे याद है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और आप लोग भी जो इसे अपनाइए कि सबसे पहले हम अच्छा सुने, पढ़े, रिवाइज करें, फिर इम्तिहान से पहले जो उसे अच्छा समझ कर पढ़े। और नेक्स्ट जो चीज़ है वो प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि इसका मतलब है टालना। मेरे टाइम टेबल में है कि मैं 11 से 12 तक उर्दू पढ़ूँ, उर्दू आसानी से ना 1 घंटा डिग्री दे दूँगी, उसके बाद कल कंपल्सरी पढ़ती, कल 11 से 12 तक कुछ भी नहीं करती, कल पढ़ती। ये टालना। आपको मालूम शाहराज़ ज़िंदगी पर कामयाबी का सफ़र एक बुक है, उसमें उसके मुसन्निफ लिखते हैं कि जो टालते हैं, मतलब अपने बाद में थोड़ी देर से कल, ये जो टालना होता है ये इस बात की अलामत है कि उनके दिल में करना ही नहीं है, उस चीज़ को करना उसके दिल में ही नहीं है जो टालता है। तो अगर हमारे दिलों में है कि हम इसको नहीं पढ़ेंगे, तभी हम टालते हैं। एक बार अपने जहन में महफूज रखिए, और जब आप टाल रहे हैं उस दौरान इस बात को जहन में लाइए कि हम लेक्चर में एक चीज़ को सुने थे कि अगर हम टाल रहे हैं तो हमारे दिल में नहीं है, और जो चीज़ दिल में नहीं है उसको हम कभी भी हासिल नहीं कर सकते। दिल के अंदर होना, हमारे दिमाग के अंदर होना, उसके लिए लगन होना ज़रूरी है। इस चीज़ को जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। और ये जो चीज़ें हैं, ये जो हमारे पर्सनल वीकनेसेस हैं, जो पर्सनल कमज़ोरियाँ हैं, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं कि हम रेगुलर लेक्चर सुने। अगर आप कभी किसी दिन नया हो तो कल की जो क्लास है वो अपनी किसी सहेली से सुन लें। तो ये चीज़ जो है अच्छी चीज़ है कि हम अगर किसी दिन एब्सेंट रहें तो फजूल गुफ्तगू के बजाय हम ये पूछेंगे कल क्लास में क्या हुआ था, क्या पढ़ा है। तो इससे जो है हम नहीं आकर भी जो है आकर नेक्स्ट डे आके उस चीज़ को जो है हासिल कर सकते हैं। और हम जो चीज़ें मॉर्निंग के टाइम पे हार्ड जो सब्जेक्ट्स रहते हैं उनको जो है हम लें, और जो चीज़ें डेट्स अक्सर जो है याद नहीं रहते, तारीख, तो उन चीज़ को जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, पढ़ें। और पंक्चुअलिटी, प्रे द नमाज विच इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ माइंड। जहन को बनाने के लिए सबसे अहम जो चीज़ है वो नमाज है। आपका पूरा स्ट्रिक्टली आप टाइम टेबल फॉलो कर रहे, स्ट्रिक्टली जो है आप पढ़ रहे, पूरे टाइम को आप मैनेज कर रहे, जो प्लानिंग की है उसको जो है आप अमल कर रहे, मगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे उस दौरान,
तो आपका दिमाग कमजोरी का शिकार हो जाता है। आप देखिए इतने फवायद हैं नमाज के, आपको ना गेम खेलने की जरूरत रहती, ना रिफ्रेश होने की जरूरत रहती, ना किसी और बैरूनी तरीके से सेहत को इम्प्रूव करने की जरूरत रहती। आपको मालूम जब हम वजू करते हैं तो इतने ज़्यादा फवायद है, इस्लामिक एतबार से तो है, तबई एतबार से जिस्म के इतने ज़्यादा फायदे हैं। जब हम सर का मसाज करते हैं ऐसे, तो जो ये जो गर्दन की नसें होती है उसका डायरेक्ट जो कनेक्शन होता है वो माइंड से होता है, दिमाग से होता है। और जब हम दिन में 5 वक्त अगर उसको हम पानी पहुँचाएंगे, अगर ठंडक उसे महसूस होगी तो आप कभी भी जहनी कश्मकश का शिकार नहीं, आपका माइंड हमेशा रिफ्रेश रहता है। बशर्ते कि 5 वक्त आपके दिमाग के नसों को जो है पानी पहुँचे, ठंडक पहुँचे। तो बहुत सारे फवायद जो है नमाज के अंदर है। नमाज पढ़ के दुआएं भी करें कि अल्लाह ताला जो मैं पढ़ रही हूँ तो मेहनत कर रहे हैं तो इसमें कामयाबी दे सकते। नेक्स्ट, उस चीज को खत्ते तौर पे ना पढ़े जिसको आप रट्टी मार के पढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही तो आप उसको बार बार रट रहे हैं तो वैसा मत कीजिए, उसको समझने के बाद ही पढ़िए। उस चीज को छोड़ दीजिए जो आपको समझ में नहीं। रट्टी मारने से जो आप समझे हैं वो भी जो है भूल जाते हैं। और जो आप नोट्स लिखे हैं वो नोट्स को जो है आप निकाल के पढ़े। 12 घंटों के दौरान जो आप पढ़ रहे हैं उसको एक मरतबा लिख लें भी। और जब भी जो है सेशंस आपके छूटे हैं उसको जो है आप कंप्लीट कर लें। और जब हम स्टडी करते हैं उस दौरान जो इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं उसको जो है हम अच्छी तरह से याद कर लें, अंडरलाइन कर लें। और एक अहम चीज़, जब हम इम्तिहान लिखते हैं, इम्तिहान लिखने का तरीका कि जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं, हमें जो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में पूरे लेंथी आंसर्स मिलते हैं। शॉर्ट मार्क्स के भी हो तो उसको मिनिमम 1 से 1.5 पेज लिखना पड़ता है। तो वैसे आंसर्स को हम पॉइंट वाइज लिखें, इतना बेहतरीन इम्प्रेशन पेपर करेक्शन करने वाले के ऊपर जाता है कि खुशनुमा खत और एक नीटनेस उसके अंदर दिखता है। और जब पॉइंट वाइज पूरी चीज़ें आ जाए तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट, अब इम्तिहान से एक दिन पहले क्या करना है। इम्तिहान से एक दिन पहले, अब तक तो जो है प्री एग्जाम देख रहे थे कि इम्तिहान तक क्या करना है। इम्तिहान से एक दिन पहले हमें क्या करना है, हमें खत्ती तौर पे ये नहीं सोचना है कि मेरे पेरेंट्स क्या सोच रहेगी, मेरे टीचर्स क्या सोच रहेगी, मेरी सहेली क्या सोच रही कि उन्हें उतना पढ़ी मैं नहीं पढ़ी। ये जो चीज़ें हैं, थॉट्स है, इसको जो है हम खत्ते तौर पे ना लाएं। और इस चीज़ को तो आप टोटली भूल जाएं। मेरे से सुपर सीनियर एक थे, उनका नाम भी हफीज़ था। उन्होंने सेल्फ सेंटर अपने ही कॉलेज के थे, उनको डिबार कर दिया गया। हम ऐसा ना सोचे कि हमारा सेल्फ सेंटर है, हमारे कॉलेज ही हमारा सेंटर है, हम चीटिंग कर सकते हैं, चीटिंग की गुंजाइश है, ऐसा मत सोचिए। यहाँ से कई स्टूडेंट्स डिबार होते हैं चीटिंग के दौरान, तो अपने जहन से निकाल दीजिए और अच्छी तरह से जो है आप पढ़िए। ये मत सोचिए कि दूसरे आपके ताल्लुक से क्या सोचते हैं, बल्कि ये सोचिए कि आप आपके ताल्लुक से क्या सोचते हैं एक दिन पहले। और आप सबके सब ये सोचेंगे कि मैं आज का एग्ज़ाम बेहतरीन तरीके से लिखूंगा और पूरा एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करूंगा, पूरा क्वेश्चन पेपर जो है अटेम्प्ट करूंगा। हमारे ताल्लुक से सोचना है, हमें दूसरे हमारे ताल्लुक से क्या सोचते हैं वो नहीं सोचना है। नेक्स्ट, अब कुछ काम जो है हमें इम्तिहान से एक दिन पहले करने होते हैं। वो सबसे पहले ये कि जो आप नोट्स तैयार किए हैं पढ़ाई के दौरान, उस नोट्स को जो है आप अच्छी तरह पढ़ लें। और जहाँ पर आप अंडरलाइन किए हुए हैं उस जगहों को भी एक मरतबा देख लें। जो इम्पोर्टेंट डेट्स रहते हैं, इम्पोर्टेंट इवेंट्स रहते हैं, उसको जो है आप एक मरतबा देख लें। और पूरा सिलेबस शुरू से आखिर तक आप चेक कर लें कि कौन से मजमून में मेरा कौन सा आंसर छूटा है। ये चीज़ भी जो है आप लोग देख लें। और जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उसको लेके चेक करें कि ये क्वेश्चन पेपर है तो मुझे कितना याद है। उससे जो है आपको उसी वक्त अंदाजा हो जाता है कि आपको कितना याद है और कितना याद करने की ज़रूरत है। और इम्तिहान से एक दिन पहले नए चैप्टर को ना पढ़ें। आप जितना इम्तिहान के एक दिन पहले तक पढ़े हैं वही आपका सिलेबस है। इम्तिहान से एक दिन पहले अगर आप नया पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे और उसका असर दूसरे जो आप याद कर लिए, समझ लिए, उस पर होता। तो अभी मौका है
हमारे पास हम पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ने का। इम्तिहान से एक दिन पहले 2 दिन पहले हमें नए चैप्टर्स को पढ़ना नहीं है, ये चीज़ अपने जहनों में व्यवस्थित कर लीजिए। नेक्स्ट, और आपके जो सेंटर होता है एग्जामिनेशन सेंटर, उससे आप एक दिन पहले जाके देख लें कि आपका सेंटर कहाँ पे है। आपको अपने कॉलेज में तो इस चीज़ की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, अब इम्तिहान के दिन हमें क्या करना है? सबसे पहले जो चीज़ है, हमें तहज्जुद के टाइम पे उठ जाना है, नमाज पढ़ना है, दुआ करना है कि अल्लाह ताला इस 6 महीने में जो मैंने मेहनत की है, जो मैंने पढ़ा है, जो भी मैंने याद किया है, उसको मेरे जहन में महफूज रख, इम्तिहान के दिन मुझे याद दिला। और जब हम इम्तिहान के लिए निकलते हैं तो 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के जो है आए और दुआ नेक दुआओं के साथ, और जल्दी आए। ऐसा नहीं होना कि आपका एग्ज़ाम 9:30 बजे से है, आप 9:15 को यहाँ पे आ रहे हैं, या फिर एग्जैक्ट 9:25 को आ रहे हैं, बल्कि आप 8:30 से 9 बजे आ जाएं। फर्स्ट डे की बात कर रहा हूँ, और आके आपका रूम नंबर चेक कर लें, आप कहाँ पर है वो सब देख लिया। इम्तिहान हाल में जल्द से जल्द पहुँचे, और सबसे अहम जो चीज़ है, हॉल टिकट ना भूलें। आमतौर पे होता है ऐसा कि हॉल टिकट जो है हम भूल जाते हैं। हॉल टिकट के आप 2 से 4 जेरॉक्स करा के रखें। हॉल टिकट, पूरी स्टेशनरी, पेन्स, पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्केल, जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती है वो हम पूरा का पूरा ला लें। और आपकी कला की खातिर हमारे कॉलेज में एग्ज़ाम पैड्स नॉट अलाउड है। अब तक तो एग्ज़ाम पैड अगर हम लाते हैं तो वो हमें बाहर जो रख देना पड़ता है। आप एग्ज़ाम पैड्स मत लाइए। क्या ये साल भी वैसा है सर? तो इस साल भी जो है वही सिस्टम है, तो एग्ज़ाम पैड्स आप ना लाएं। उससे होता है कि आप बाहर रखेंगे तो वो खो जाने का। फोन में नहीं लाना, फोन में नहीं लाना। मोबाइल फोन्स और शूज़ भी जो है नॉट अलाउड है। अगर आप शूज़ पहनेंगे, सॉक्स पहनेंगे, तो आपको जो है वो बाहर निकाल के बगैर नंगे पाँव जो है आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठना पड़ता है। और ऐसा ना हो कि कल एग्ज़ाम है, आज रात में 1 बजे तक पढ़े, 1 बजे सो गए, 3 बजे तक पढ़े, फिर 3 बजे से पूरा 7 बजे तक पढ़े, 7 बजे से 8 बजे तक पूरा रेडी हो गए, फ्रेश हो गए इम्तिहान के लिए, थोड़ा गए हॉल टिकट लेने, बेड पे लुढ़क गए तो आप 1 बजे उठे। ऐसा जो है ना हो। ऐसा हुआ है। हमारे मेरा एक दोस्त है, उन्होंने 10th के दिन ऐसा ही पढ़े, 1 बजे तक पढ़े, बेहतरीन, 1 बजे सो गए, फिर तहज्जुद से पढ़े 7 बजे तक, 7 बजे रिफ्रेश हो गए। अच्छा, इम्तिहान जानने से इसे पूरा स्टेशनरी रेडी करे, ऐसा बेड पे गए, हॉल टिकट डेस्क में से निकाल रहे, थोड़ा अच्छा दिखा, 2 मिनट लेट, 2 मिनट लेटे, बेचारों का 1 साल रुक गया। तो ऐसी गलती हम ना करें। जो हमारा टाइम टेबल है वो एग्जाम्स के दौरान भी हम जो है उसी टाइम टेबल को फॉलो करें, कोई अलग से स्पेशल जो है हम ना पढ़ें। नेक्स्ट, अब हमें एग्जाम हॉल में कैसे करना है? सबसे पहले आप एग्जामिनेशन हॉल में जब जाएंगे आप सेंटर में, तो आप रिलैक्स होकर बैठ जाए, खोपड़ी निकाल के लगा दिया। तो वो आपको नहीं करना है। असल ये जो इमेज है ये यानी कि आप बैठे और बैठ कर जो है याद कर लेंगे शेरशाह सूरी का नजर एक कौन सा था, मुगल सल्तनत का कौन सा था, बुनियादी हुकूक के दफात कौन से, पूरा अगर वो याद कर रहे हैं आप, तो आप एग्जाम में पूरा टोटली भूल जाएंगे। आपको जाके सुकून से बैठना है, जिक्र करना, दुआएं असबर करना, सुकून से बैठना पहले जाने के बाद क्वेश्चन पेपर आया था। नेक्स्ट, ऐसा भी सुकून नहीं होना। पलटा पलटा बताओ। नेक्स्ट, अब वो काम जो हमें चल, वो काम जो हमें इम्तिहान हॉल में जाके करना है, सबसे पहले हमें रिलैक्स होकर बैठ जाना है। फिर उसके बाद जब क्वेश्चन पेपर हमें मिलता है तो हम ये करें कि पहले पूरे क्वेश्चन पेपर को एक बार आप पढ़ लें, शुरू से आखिर तक। ऐसा नहीं कि आप पहला क्वेश्चन पढ़े लिखना शुरू कर दिए, बल्कि पूरे पेपर को पढ़ लें और उसका इरादा करें कि उसका मेजरमेंट करें कि मैं कितना पढ़ा हूँ। आपको चॉइस भी रहते, 8 में से 5 करना रहता, तो ऐसा है कि आप 5 के 5 तो पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ना शेयर थे, उससे अंदाजा हो जाता है कि हम कितना कर सकते हैं। पहले पूरा पढ़ ले, फिर उसका वेटेज कर ले, फिर टाइम मैनेज करें। आपका टाइम पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप
एग्ज़ाम के लिए लास्ट 10 मिनट है बोल के ऐलान करें और आपके 4 से 5 आंसर्स बचे हुए हैं, बल्कि आप टाइम को अच्छी तरह से जो है मैनेज करना है, अपने घड़ी को देखते रहना है और एग्ज़ाम से 10 मिनट पहले लिखना बंद कर दें। ये आमतौर पे मैं तो मेरा जो है 2.5 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस है कि कोई भी जो है 10 मिनट पहले नहीं रोकते, बल्कि घंटा होने के बाद भी जो है और 10 मिनट तक लिखते, रिक्वेस्ट करके, प्लीजिंग करके। ये नुकसानदायक चीज़ है। क्यों? तो हम जल्दबा देखिए 3 घंटे में अगर हम नहीं लिख सके तो 10 मिनट में क्या लिखें। एक चीज़ पहले जहन में ये क्लैरिफाई होना चाहिए, बल्कि हम उस 10 मिनट में ये करें कि आप जो है पूरा पेपर चेक कर लें कि क्वेश्चन नंबर डाले क्या, आंसर डाले क्या, क्योंकि हमें क्वेश्चन लिखना नहीं होता डिग्री में, सिर्फ क्वेश्चन नंबर डालना रहता है। और एक बात आप नोट डाउन कर लीजिए कि क्वेश्चन पेपर हम पेज के बीच में डालें, क्योंकि जब स्टेपलर लगाते हैं तो उस दौरान अगर साइड में आप लिखेंगे ऐसा, मिसाल के तौर पे अगर आपका एक पेपर है तो आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डालें, सेक्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर अगर आप यहाँ पे डालेंगे तो आप एडिशनल जब होगा तो जब पिन मार देंगे तो छूट जाता, जिससे मालूम नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर, सेक्शन नंबर हम बीच में डालें। हमारे एक नॉन मुस्लिम दोस्त है काकतिया के टॉपर, मगर जो है उनको पूरा पेपर करे, वो बहुत बेहतरीन स्टूडेंट था बाईपीसी का, मगर जो है उसको बहुत कम मार्क्स आए। जब पेपर रिवैल्यूएशन के लिए दिए तो मिस्टेक यही निकली कि उन्होंने जो क्वेश्चन नंबर डाले थे वो साइड में डाले थे और पिन करने के दौरान वो पूरे हाइड हो गए थे, छुप गए थे, और जो पिन करता वो लापरवाही से करता है ना। तो ये चीज़ है, हम क्वेश्चन पेपर के बीचों बीच में जो लिखें और 10 मिनट पहले इम्तिहान हाल में पेपर लिखना बंद कर दें और पूरा चेक करें कि हम आप पूरा क्वेश्चन नंबर डालें या नहीं डालें, कहीं कुछ मिस्टेक होगा और आपसे कुछ गलती हो जाए तो इस तरह से उसे नहीं करना, बल्कि एक लाइन मार देना। उससे होता है कि और स्पेशली मैं गर्ल्स को बोलूँ कि आप ग्लिटर्स खत्ती तौर पर इस्तेमाल ना करें। आमतौर पर होता है ऐसा कि हेडिंग्स बनाने के लिए ग्लिटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जो पेपर करेक्शन करने वाला होता है वो पेपर करेक्शन के दौरान उनको रिफ्रेशमेंट दिया जाता है, पीने के लिए चाय, पानी, बिस्किट। जब वो खाते हैं, अगर वो आपके पेपर पे एक भी खतरा गिरा और ग्लिटर से लिखा हुआ है तो वो पूरा स्पॉइल हो जाता है। ग्लिटर समझ रहे आप लोग? हरेश का पेन तो ग्लिटर्स का जो है हम अपने तौर पे इस्तेमाल आफ्टर एग्जाम के बाद जो है हमें क्या करना है, परेशानी और मायूसी जो है मसले का हल नहीं है। नेक्स्ट, आप एग्जाम से आने के बाद शुक्राना शुक्राना नमाज पढ़ें और दुआ करें कि अल्लाह जो मैं पेपर लिखकर आया हूँ तो उसमें कामयाबी दे, और उसमें जो गलतियाँ हुए हैं वो जो करेक्शन करने वाला है उसके जहन से उसको निकाल दे। इस तरह से जो है मुस्बित दुआ हम अल्लाह ताला से करें और नमाज पढ़ें। But one more important thing. एक मिनट, यहाँ पे कुछ और एक अहम चीज़ है जो हम भूल रहे हैं। मेरे ख्याल से ये जो लेक्चर है उसकी पूरी बातें हमारे सामने आ गई। आप लोगों को डाउट है तो भी रखिए, बाद में पूछिए मत। यहाँ पे एक अहम चीज़ है जो हम भूल रहे, वो क्या है? कोई बोल सकते हैं इम्तिहान के ताल्लुक से? नेक्स्ट, अवर मेन एग्जाम, हमारा सबसे अहम एग्जाम कौन सा है? नेक्स्ट, खबर कि हमारा ईमान है कि एक दिन हमारा खात्मा हो जाएगा, हम मिट्टी में मिल जाएंगे, हम खुदा के पास जाने वाले हैं, हमें जो है हमारे से सवालात होने वाले हैं। ये चीज़ को जो है हम ना भूलें। हम ईमान वाले हैं, हम तौहीद के अलमबरदार हैं, लिहाजा हमें चाहिए कि हम हमारे जो दुनिया में आए उस चीज़ को भी ना भूलें। हम माँ बाप की फरमा बरदारी करें, हम नमाज़ों का अहतमाम करें, हम असातिज़ा की इज़्ज़त करें, भाई बहनों के साथ अच्छे से पेश आए। ये कोई बड़ा टारगेट नहीं है, बड़ा हमें जो जिहाद के लिए निकलना नहीं है, बल्कि हम हमारे नफ्स को रोके, यही जो है हमारे लिए जिहाद है। ये भी एक किस्म का जिहाद है। नेक्स्ट, जैसा कि हमें एग्ज़ाम में 2 रिजल्ट होते हैं, फेल या पास, प्रमोट और पास। उसी तरह से
हमारा जो मेन एग्ज़ाम है उसके भी जो 2 ही रिजल्ट है, जन्नत या जहन्नम, तब हमें फैसला इस बात का करना है कि हमें कौन सा रिजल्ट चाहिए। फैसला कीजिए, अभी हमारे पास वक्त है, तौबा का हमारे पास गुंजाइश है, हम तौबा करें तक गुनाहों के लिए, और अब से जो हमारी ज़िंदगी है वो नेक्स्ट। थैंक यू। मैं तमाम का इस मौका पर शुक्रगुजार हूँ कि आप सुकून के साथ इस लेक्चर को सुने हैं। ये जो एक्टिविटीज़ बनाए गए तलबा की एक तंजीम है, शायद आप तमाम वाक़िफ़ होंगे, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन। उसका मिशन ये है कि इलाही हिदायत के मुताबिक समाज की तश्कील न के लिए तलबा नज़रों ख्याल रखना। मौजूदा माशरा पूरा बुराइयों में घिर चुका है। ये तंजीम इस बात के लिए कोशिश करती है कि नौजवानों के अंदर अखलाकी पस्ती को मिटाकर अखलाक को लाएँ, नौजवानों की जो है सोच को बदलें और नौजवानों की सलाहियतों को निखारें। इसके तहत ये तंजीम काम करती है। मैं इस मौके पर अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, और इस मौके पर मैं उर्दू गिरिराज कॉलेज शोबे उर्दू जनाब डॉक्टर असलम फारूक साहब का भी तहे दिल से ममनून व मशकूर हूँ कि उन्होंने इस तरह के इस लेक्चर को यहाँ पे कंडक्ट किया और इसके ज़रिए तालिबात के इस्तेफ़ादा का इन्होंने सोचा। मैं शोबे उर्दू का तहे दिल से ममनून व मशकूर हूँ। हाँ जी, सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे आप देखते हैं कि इस क्लासरूम में 30-40 लोगों ने ये लेक्चर सुना, लेकिन हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि ये लेक्चर सारी दुनिया में पहुंच गया है। अमेरिका से एक मैडम है शहनाज शादी शायरा, वो देखे हैं। लखनऊ से इकनॉमिक्स से एक लेक्चरर है अजरा बानो, वो देखे हैं। हैदराबाद से अखबारात के कई रिपोर्टर्स हैं और दीगर शहरों से भी लोगों ने देखा। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एक स्कॉलर है आफ्ताब अर्शी, वो देखे हैं। निजामाबाद से कुछ लोग देखे। ये सब क्या है कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल है। कल रात में मैं 11 बजे जो है मजमून लिख रहा था कि उर्दू लेक्चरर टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करे। ये आप लोग देखते हैं तो मैं देखिए इम्तिहान की तैयारी कैसे करें, एक ऐसा उन्वान है जो हमारे उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाजमी है। आजकल सब लोग तकनीकी एतबार से अपनी तैयारी कर रहे हैं। ज़िंदगी के हर मामले की प्लानिंग होती है, मनसूबाबंदी होती है। कल ही हैदराबाद में एक दानिशवरों का एक जलसा हुआ था, जहां पर मुस्लिम समाज में हैदराबाद में, आप अखबार पे सुने होंगे कि कम उम्र की बच्चियों की अरब लोगों के बड़े बड़े बुढ़ी उम्र के लोगों से शादी कर रहे पैसों की खातिर। उस सिलसिले में भी उन्होंने कहा था कि मुसलमानों की ज़िंदगी में मनसूबाबंदी होना चाहिए और बच्चियों को इस तरह नहीं करना चाहिए। तो ये इम्तिहानात की तैयारी के सिलसिले में ये जो लेक्चर हुआ, ये ना सिर्फ आप लोगों ने सुना और इसका फ़ायदा हुआ, बल्कि ये लेक्चर अब वीडियो में फेसबुक पे चल रहा है। और इसके बाद इसको जो है गुज़िश्ता साल भी हफीज़ ने ये पेश किया था, उसको बहुत पसंद किया गया। तो आप लोग देखे होंगे कि हमारे ही कॉलेज के एक तालिब इल्म जो 3rd ईयर में, हम उम्मीद कर लिए IAS की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इनकी मंजिल जैसे उन्होंने कहा कि उनकी सोच होना चाहिए, तो वहाँ तक पहुँचेंगे। लेक्चरर तो ज़रूर बनेंगे, पॉलिटिकल साइंस के, इकनॉमिक्स के, इंग्लिश के। तो ये लेक्चर इस क्लास के अलावा बहुत सारे लोगों ने देखा है और भी लोग देखेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इस तरह की बातें रोज़ रोज़ नहीं होती है, और हमको जैसे मैंने कहा था कि नोट कर लेना चाहिए इस तरह की बातों को। तो गिरिराज कॉलेज में इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, और यही क्लासरूम इसीलिए बनाया गया है कि आपको ये जो ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी है इसकी मदद से आपको कुछ अच्छी बातें बताई जाए। आपका नाम क्या बोले? हीना। तो ये एक हमारे तदरीस का हिस्सा है कि अगर आपके सामने कोई लेक्चर हो तो तलबा भी जो है अपनी तरफ से अपने ख्यालात का इजहार करें। तो ये हीना अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, उसके बाद आप लोगों में से भी कोई कुछ बोलना चाह रहे, कुछ सवाल करना चाह रहे, ये सवाल भी होना चाहिए। हाँ बोलिए। आज से हम सब भी यहाँ पर इकट्ठा हुए कि हमें इम्तिहानात की तैयारी के ताल्लुक से हमारे सीनियर हाफिज तैयारी इसके बाद ताल्लुक से सारी बातें हम तक मुहैया की हैं। हमें इससे ये फ़ायदा हुआ है कि हम फ़िलहाल हम तो यहाँ पर स्टार्टिंग हमारा 1st सेम है, या अभी से हमें इस कामयाबी तक पहुँचने के लिए एक अच्छी कोशिश, अच्छी तैयारी का सारा मवाद हम तक पहुँचाए। इसके शुक्रगुजार डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूक साहब और हाफिज़ जिन्होंने हम तक ये सारी बातें पहुँचाई है।
हम इन्होंने तो अपना फर्ज अदा कर दिया कि हम तक सारा मौका पहुँचा दिया कि हमें किस तरह से तैयारी करनी है, इम्तहानात के दौरान, इम्तहानात के बाद, इम्तहानात से पहले। लेकिन अब हमारा फर्ज भी है कि हमें इनकी कही हुई बातों को अपने नोट्स में तो हमने नोट कर लिया है, माइंड में नोट करके उस पर अमल पैरा अच्छी तरह से रहेंगे तो ऊंचा गोल, जैसे इन्होंने कहा कि चांद को हमारा गोल बनाना है, उसका वो तो मुमकिन नहीं है, लेकिन ऊंचा हमारा एक ऊंचा गोल रख के हम बहुत कामयाबी के लिए ऊंचा गोल रखना ज़रूरी है, तो वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं, अच्छा टॉपर रैंक भी ला सकते हैं। हमारे लिए नामुमकिन बात नहीं है, हम मुमकिन कर सकते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात दिए हैं, हमें अशरफुल मखलूक़ात से नवाजा है। इसलिए अब मैं यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे सभी मौजूद है, फाइनल ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर। बिना जो है आप फर्स्ट ईयर में हैं और इतने अच्छी तहरीर किए हैं, जब आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जाएंगे तो इरादा कीजिए कि इंशाल्लाह 5 भी ऐसा सिलेक्शन होंगे ज़रूर, इंशाल्लाह ज़रूर सर। बाकी अगर बोले सारा हिना को बोले हमको कहना बोले पहले तो हमारे काम से कोई बोले तो बहुत अच्छा था, मैं खुश हो गए। बी काम से कोई आई है, बी काम वाले हाथ तो उठाओ। अच्छा और भी बोलना चाह रहे बॉयस, क्या भैया रवि क्या नाम है अपना? रहीम तो नहीं क्या नाम है? अरे इधर आगे बोल अरे आओ जरा आओ, मैं एक लीडर है आप कॉलेज से। और वहाँ पे मैं हज़रत अली का कौल आपके सामने रखना चाहूँ कि हज़रत अली का कौल है कि कम हिम्मत लोग वो होते हैं जो हर मौके को मुश्किल समझते हैं, और बाहिम्मत लोग वो होते हैं जो हर मुश्किल को मौका समझते हैं। परंतु ये मौका है हमारे अंदर छुपी हुई सलाहियत को बाहर लाने में सब लोग स्टेज पे आए थे और सब लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया, कुछ लोग छुप रहे हैं क्या देखो क्या छुप रहे हैं, छुप रहे हैं। बी काम से कोई उठ जाओ पूरे बी काम से 10 बॉयज आओ, शफी आओ, तुम बोलो भैया हमारे से बोलो, लेक्चर सुनने की क्या फायदा होगा, मालूमात मिलता होगा, बोलो लेक्चर से हमको मालूमात मिलता होगा। एक बार आला सोच कामयाबी की दिशा है। तो आप अपने ज़िंदगी में जो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं इसके बारे में भी तजुर्बा करो, ये उसको भी जो है हम अपना तारुफ करो, लोग देख रहे हैं दुनिया भर में। आप स्विमर है क्या है? हाँ आपका रिकॉर्ड क्या है बोलिए? सर स्टेट गोल्ड मेडल किसमें है? आप तो से बटरफ्लाई क्या है? बैक स्ट्रोक है। कितने सेकंड का रिकॉर्ड है आपका? सर 200 मीटर बैक स्ट्रोक, 100 मीटर बैक स्ट्रोक सर 1 मिनट 30 सेकंड। हाँ और नेशनल रिकॉर्ड कितना है? नेशनल रिकॉर्ड सर सर जूनियर्स में है सर, ठीक है 1 मिनट सर 10 सेकंड। देखो हमारे गिराज कॉलेज में स्विमर है, शकील नाम है, शकील नाम। हाँ ये जो है ये स्विमर है जिसे नेशनल रिकॉर्ड से बिल्कुल करीब है। उम्मीद करते हैं कि ये भी जो है जैसे हबीब ने कहा इम्तिहान की तैयारी, उनका इम्तिहान है कि अच्छी स्विमिंग करे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उनके लिए भी ट्राई